students, how are you? My name is Sanjeev Kumar, PGT Biology, JNB Golaghat, Assam. Students, I am going to prepare this lecture video for 10th class students. In science portion of 10th class, the biology portion is very interesting. Students, in earlier classes, as you know, the biology subject is very complicated due to its terminology. That is why most of the students they know the subject of biology as the complicated subject. So students, but in 10th class the biology portion is very important and very interesting also. So I thought I should prepare a video for you to make this portion easy to understand. So students, let's start. You know, the life processes. Why is this chapter in our syllabus? Because this is the concept to understand the life, to understand how life can exist in the living being. So students, let's move to next. Students, before starting the life processes, we must know about the properties of living being. What are the properties of living being? वैसे तो आप लोग पहले क्लासेस में पढ़ चुके हैं व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग बीइंग. सो मैंने आपको कुछ थोड़ा सा इसमें बताने की कोशिश की है, इससे आप अच्छे से समझ जाएंगे. लिविंग बीइंग आर द थिंग्स विच कैन रेस्पायर. लिविंग थिंग्स are the things which can excrete, which can perform the metabolism, which can reproduce, which can develop, which can grow. So students, these are the characteristics of living beings. Grow, most of the living things, when we observe them, then we observe that living things can grow, living things can develop. Develop means maturation of the body parts. Living things can respire, means they can exchange the gases inside the body and outside the body. Living things can excrete. Most of the excretory substances which are very harmful to our body, they are eliminated through the excretion process. So living thing can excrete. Living thing perform the metabolism. So what is the metabolism? Students, metabolism, it is the total sum of the biochemical reactions. Biochemical reactions in our body. So biochemical reactions in our body are called metabolism. Metabolism is divided into two parts, catabolism and anabolism. What does it mean, catabolism? Catabolism means the destructive process. Catabolism means destructive process and anabolism means constructive process. Most of the biochemical reactions which are going on in our body are destructive in nature, means respiration. Just like respiration, in respiration glucose is dissociated into carbon dioxide plus water. So that is why it is destructive process. In destructive process, the complex substances are dissociated into simpler one. But in anabolic process, anabolism, the substances, means simpler substances make the complex one. Just like photosynthesis, so in photosynthesis CO2 and water make the glucose. So that is why it is the constructive process. Metabolism is of two types, catabolism destructive process, anabolism constructive process. Let's go on the next page. Students, life processes. What type of processes are undergoing in our body to exist the life? Nutrition, respiration, transportation, excretion. Transportation may be of two type in plants and animals also.
in your syllabus, transportation in animals, transportation in plant. That is why I written separately. So nutrition, what is nutrition? Nutrition is the way of taking or nourishing the living being. And respiration, respiration you know very well. Transportation means transportation or movement of the biomolecules from one place to another place of the body. Then transportation in plant, just like in animals, in plants also the nutrients move from one part to another parts of the plant. Excretion, the elimination of the wastage, the nitrogenous wastage from the body of the animals is called the excretion, or harmful substances are eliminated out from the body. This is excretion. So students, now we are going to try to understand very well the nutrition. Nutrition, as I told you earlier, nutrition, the way of nourishing living being is called nutrition. In different living being, nutrition may be different type. क्योंकि आप लोग जानते ही हैं प्लांट्स, एनिमल्स, बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अलग अलग लिविंग बीइंग में न्यूट्रिशन अलग अलग तरह से हो सकता है, बट इट इज़ द वे ऑफ नरिशिंग लिविंग बीइंग, how to they nourish their body, how to they take their food. This is called nutrition. Nutrition, you know why it is required. Nutrition, without nutrition can we survive? Because it is the life process and life cannot be exist without it. So let's go on next page. So types of nutrition. Students, in earlier classes also you have read about the types of nutrition. Mainly nutrition is of two types: autotrophic nutrition and heterotrophic nutrition. Autotrophic nutrition, what is the autotrophic nutrition? Autotrophic nutrition is the mode of nutrition in which living being they make their own food, or living being they nourish themselves by their own. And heterotrophic nutrition, the living being are totally dependent for their nourishment on others. So autotrophic nutrition and heterotrophic nutrition. Students, you can also understand and can remember it by the terminology. Students, remember one thing, very important thing in the biology. In biology, the terminology is very important, very important. If you got the terminology, then you can understand the concept very easy, and also you can recall it very easily. So auto means auto means self, and autotrophic means self. Nutrition, you know, the taking or the way of nourishing, this is autotrophic nutrition. Hetero means different or others. Living beings who are dependent on others for their nutrition, the mode of nutrition is called heterotrophic nutrition. One most important thing, students, this is we are discussing, this is the process of nutrition, but the terminology is different. This is the process autotrophic nutrition, but the example or the animals which are going to take or going to nourish by this process are called autotroph. Autotrophs is the living being, but autotrophic nutrition is the process. So this is the little bit difference between two terms, so you can understand very easily. Autotrophic nutrition means the process, autotrophs means the example or the living being who perform this type of nutrition. So what is the example of autotrophic nutrition? The green plants and some bacteria. So some bacteria also perform this autotrophic nutrition. So these are the autotrophs. Green plants are called autotrophs because they perform the autotrophic nutrition, and some bacteria whosoever perform this process are called autotrophs. Now what are the types of autotrophic nutrition? So let's understand what are the types of
Autotrophic nutrition. Autotrophic nutrition may be of two types: photoautotrophic nutrition and chemosynthetic nutrition. Photoautotrophic means the term is photo. I again reminding you that the terminology is very important if you want to understand the concept very easily. Photo means sunlight. Photo means sunlight. Sunlight. Autotrophic, you have read earlier, autotrophic nutrition means the living being, they make their own food in the presence of sunlight. This process is known as the photoautotrophic nutrition. So this is the type of autotrophic nutrition. One. Another type is chemosynthetic nutrition. Chemosynthetic, and this is also known as the chemoautotrophic nutrition. Chemosynthetic, chemo, the term chemo means chemical. So the chemo means chemical. Synthetic means synthesize karna, form karna. Means the living being, they form their own food with the help of chemical. This process is known as the chemosynthetic nutrition. Students, again remember one thing, that this is, we are discussing, this is the process. This is the process. Photoautotrophic nutrition is the process, but the living being who perform the photoautotrophic nutrition are called photoautotroph. Photoautotroph means the living being who perform this photoautotrophic nutrition are called photoautotrophs. Photoautotrophs means living being, and photoautotrophic nutrition means the process. Example, who are the photoautotrophs? Green plants. Green plants. So green plants are the photoautotroph. And just like it, next thing, the chemosynthetic nutrition. So chemosynthetic nutrition, this is the process. Chemosynthetic nutrition is the process, but the living being who perform this type of nutrition are called chemoautotroph. Autotroph. So chemoautotroph are the living being who perform chemosynthetic nutrition or chemoautotrophic nutrition. What are the example? Example, iron bacteria. Iron bacteria whosoever dependent for their nourishment on iron. So iron bacteria, sulfur bacteria, phosphorus bacteria are different example of chemosynthetic nutrition. So I hope you are understanding well. Now next thing, heterotrophic nutrition. Heterotrophic nutrition, what are the heterotrophic nutrition, or what is the heterotrophic nutrition? Heterotrophic, as we earlier understood very well, that hetero means different, living being who are totally dependent on others for their nourishment. This is process known as the heterotrophic nutrition. This is of different type: saprophytic nutrition, holozoic nutrition and parasitic nutrition. What does it mean? Saprophytic nutrition or saprotrophic nutrition. Saprotrophic, sapros, again I am reminding you that understand the terminology. Saprotroph or sapro is the term is coming from sapros. Sapros means the dead and decay matter. Dead and decay matter. Dead and decay matter means the living being are nourishing themselves by dead and decay matter of animals as well as plants. The process is known as the saprotrophic nutrition, and the living being are called saprotroph. Saprotroph. So saprotrophs are the living being and the saprotrophic nutrition is the process. So next one is holozoic nutrition. Holozoic nutrition, what is the holozoic nutrition? Holozoic nutrition is the mode of heterotrophic nutrition in which living being take their food internally, means बॉडी में अंदर फूड लेते हैं और फुल होल फॉर्म में लेते हैं, कंप्लीट फॉर्म में
कंप्लीट और रॉ फॉर्म में लेते हैं और इंटरनल प्रोसेसिंग होती है, इंटरनल प्रोसेसिंग होती है। प्रोसेसिंग, इंटरनल प्रोसेसिंग होती है मतलब आप लोग जानते हैं हम लोग अपना फूड खाते हैं और फूड हमारी बॉडी में स्टमक में जाने के बाद अंदर प्रोसेस होता है, डाइजेस्ट होता है, तब जा कर के एब्जॉर्ब होता है, फिर एसिमुलेट होता है। तो इस टाइप का न्यूट्रिशन जो है उसको हम लोग होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। तो ये होलोजोइक न्यूट्रिशन ये किस किस में होता है, या व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ लिविंग बीइंग हु परफॉर्म दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन? द अमीबा, अमीबा and human. Amoeba and human perform this type of nutrition, holozoic nutrition. Next one is the parasitic nutrition. What is the parasitic nutrition? Parasitic nutrition is the mode of heterotrophic nutrition in which living beings are parasite. Parasite means living beings are totally dependent for their food as well as habitat on others are called parasite. एंड पैरासाइट जिस प्रोसेस के थ्रू न्यूट्रिशन लेते हैं उस प्रोसेस को कहते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइट आर ऑफ टू टाइप, पैरासाइट इंटरनल पैरासाइट एंड एक्सटर्नल पैरासाइट। तो इंटरनल पैरासाइट एंड एक्सटर्नल पैरासाइट दो टाइप के जो बॉडी के अंदर रहते हैं, अंदर ही अपना न्यूट्रिशन लेते हैं और बॉडी के अंदर रहते हैं। इंटरनल पैरासाइट जैसे एग्जांपल हो गया राउंड वर्म एंड लीवर फ्लूक। राउंड वर्म एंड लीवर फ्लूक इसके एग्जांपल होंगे। और एक्सटर्नल पैरासाइट जो ह्यूमन बॉडी पर जैसे लाइस, लाउस जो जुएँ होते हैं उन्हें एक्सटर्नल पैरासाइट कहते हैं। तो दिस इज द मोड ऑफ हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन इज नोन एज द पैरासिटिक nutrition in which parasite perform this type of nutrition. So student, let's go on the next page. Now we will discuss about the autotrophic nutrition in detail. Autotrophic nutrition, as we earlier understood that this is the mode of nutrition in which living being they form their food by their own. So this is autotrophic nutrition, but this is the mode of autotrophic nutrition, autotrophic nutrition, photoautotrophic nutrition. As I told you earlier, photo means sunlight. तो सनलाइट के थ्रू ये अपना फूड बनाते हैं, तो इसीलिए इस प्रोसेस को फोटोऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। फोटोऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन जो है ग्रीन प्लांट्स में होता है, ये भी हम लोग जान चुके हैं। तो ग्रीन प्लांट कैसे अपना न्यूट्रिशन मतलब अपने आप को कैसे नरिश करते हैं, कैसे अपना फूड बनाते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग पढ़ेंगे। क्या आप लोग जानते हैं इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस इस प्रोसेस को कहते हैं जिस प्रोसेस के थ्रू ग्रीन प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं। और बैक्टीरिया, कुछ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया भी इस प्रोसेस के थ्रू अपना फूड बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, कैसे ये फोटोसिंथेसिस से फूड बनता है, उसको हम लोग समझेंगे नेक्स्ट। सो लेट्स अंडरस्टैंड फोटोसिंथेसिस। आप लोगों ने 6th क्लास से पढ़ा है फोटोसिंथेसिस क्या प्रोसेस है, कैसे होता है। तो फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स एंड सम फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया फॉर्म देयर फूड। फोटोसिंथेसिस एक केमिकल प्रोसेस है। एंड हाउ कैन बी डिफाइन द फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस जैसे अभी मैंने आपको बताया था मेटाबॉलिज्म में, फोटोसिंथेसिस इज द एनाबॉलिक प्रोसेस इन विच सिंपलर मॉलिक्यूल मेक द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। देखिए वाटर और CO2 दोनों मिलकर के ग्लूकोज बना रहे हैं, तो ये सिंपलर मॉलिक्यूल मिलकर के कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को बना रहे हैं, तो ये एनाबॉलिक प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस इज द anabolic process in which carbon dioxide and water make the glucose in the presence of sunlight inside the green plants. So this is called photosynthesis. photosynthesis में जैसे 6 molecule of carbon dioxide और 12 molecule of water, और ये लाइट की प्रेजेंस में होगा, और प्लांट में कुछ एंजाइम होते हैं। सो क्लोरोफिल, ग्रीन प्लांट्स मतलब प्लांट का कलर ग्रीन क्यों होता है? क्लोरोफिल की प्रेजेंस की वजह से। तो इसीलिए क्लोरोफिल
की प्रेजेंस में ही होगा ये क्लोरोफिल के। सो बनाता क्या है, ग्लूकोज। तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज जो प्लांट को बनाता है, प्लांट के अंदर फ्री स्टार्च का फॉर्म कर लेता है, जो एक रिजर्व फूड मटेरियल होता है प्लांट का। फिर ये 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन रिलीज कर देता है एटमॉस्फेयर में, जो एटमॉस्फेरिक O2 को बैलेंस करने का काम करता है, और साथ ही 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को रिलीज कर देता है। सो स्टूडेंट्स, नाउ यू नो इवेंट्स अकर ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। मीन्स फोटोसिंथेसिस जब होता है तो कौन कौन से इवेंट्स होते हैं? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी, फिर लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, conversion of light energy to chemical energy and splitting of water molecules into hydrogen and oxygen। तो ये जब ये प्रोसेस होता है तो पहला इवेंट क्या होता है? सनलाइट का एब्जॉर्प्शन होता है क्लोरोफिल के थ्रू। दूसरा कन्वर्जन होता है, किसका कन्वर्जन होता है? लाइट एनर्जी का केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन होता है, जिसमें वाटर मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग मतलब टूटना, वाटर मॉलिक्यूल टूट जाता है किसमें? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। फिर उसके बाद तीसरा प्रोसेस क्या होता है? रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड से होता है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होता है तब जा कर के कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होता है। तो आप देख सकते हैं ये एनसीईआरटी का फिगर है, आप लोग इसको अच्छे से देखे होंगे और इसको समझ सकते हैं। ये एक लीफ है, तो लीफ का ये जो है वर्टिकल सेक्शन है उसको लिया गया है। तो वर्टिकल सेक्शन में दिखाया गया है, देखिए लीफ का जो अपर मोस्ट जो लेयर है ये वाली, तो उसको ये दिखाया गया है इस तरह से। माइक्रोस्कोप का एक व्यू है, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक व्यू। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं ये अपर एपिडर्मिस है, अपर एपिडर्मिस। फिर ये यहाँ पर कुछ सेल्स हैं जो इलोंगेटेड सेल्स हैं, इनको हम लोग पेलिसेड टिश्यू कहते हैं, और इनके अंदर जो राउंडेड वैक्यूल की तरह जो दिख रहा है वो क्लोरोप्लास्ट है। और ये जो राउंडेड सेल्स दिख रही हैं इसको हम लोग पेलिसेड टिश्यू कहते हैं, जो इलोंगेटेड है, पेलिसेड। और इनको हम लोग कहते हैं स्पॉन्जी पैरेंकाइमा। स्पॉन्जी, क्योंकि अलग अलग थोड़ा दूर दूर पर होते हैं तो स्पॉन्जी स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसीलिए इसको स्पॉन्जी पैरेंकाइमा कहते हैं। तो ये स्पॉन्जी पैरेंकाइमा है, ये पेलिसेड टिश्यू है, और इनके बीच में जो खाली जगह है वो एयर स्पेस है। फिर लोअर एपिडर्मिस जो नीचे की तरफ होती है, लोअर एपिडर्मिस, इसमें बीच बीच में सेल्स के बीच बीच में छोटे छोटे छेद होते हैं, तो उन छेद को हम लोग क्या कहते हैं? स्टोमेटा। स्टोमेटा को चारों तरफ से, स्टोमेटा क्या है? पोर है, और इस पोर को चारों तरफ से घेरने वाली जो सेल्स होती हैं उनको गार्ड सेल कहते हैं। तो ये स्ट्रक्चर आप समझ चुके होंगे, आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के अच्छे से समझ सकते हैं। नेक्स्ट, स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले ही, इसमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में जो एसेंशियल एलिमेंट्स जो रिक्वायर्ड होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये दो मेन एसेंशियल एलिमेंट होते हैं। साथ में प्लांट में क्या प्रेजेंट होना चाहिए? क्लोरोफिल। प्लांट ग्रीन होना चाहिए। क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में, यानी कि सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये चार चीज़ें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए एसेंशियल होती हैं। चार एलिमेंट हैं ये। तो इसमें एक एक्टिविटी के थ्रू, जो आप लोग एनसीईआरटी की एक्टिविटी है 6.1, इस एक्टिविटी के थ्रू आपको बताया गया है कि यहाँ पर कैसे हमने मान लिया है, कैसे प्रूव किया गया कि जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है वो हमेशा ग्रीन प्लांट में ही होती है, या ग्रीन पार्ट में, यानी प्लांट के ग्रीन पार्ट में होती है। तो कैसे होती है, इसको कैसे प्रूव किया गया? ये इस एक्टिविटी के थ्रू प्रूव किया गया। इस एक्टिविटी में करना क्या है? इस एक्टिविटी में हम लोग एक पॉटेड प्लांट लेंगे और उसको हम लोग वेरीगेटेड लीफ, मतलब विद वेरीगेटेड लीफ का मतलब ये होता है कि किसी प्लांट को लेने के बाद उसको 2-3 दिन तक अंधेरे कमरे में या अंधेरी जगह पर रख दिया जाता है, जिससे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होता है, और पहले से प्रेजेंट जो स्टार्च लीव्स में होता है वो स्टार्च कम्प्लीटली ख़त्म हो जाता है। तो उसमें जगह जगह धब्बे पड़ जाते हैं, वेरीगेटेड लीफ कहते हैं उसको। तो इसमें जैसे कोई भी प्लांट ले सकते हैं, मनी प्लांट ले सकते हैं, क्रोटन प्लांट ले सकते हैं। तो इसको हम लोग इस तरह से पूरा
डार्क रूम में रखने के बाद और उसको सनलाइट से ज़रा दूर रखते हैं डार्क रूम में। फिर उसके बाद फिर कुछ घंटों के लिए हम लोग लाते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में, फिर उसमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद लीफ को तोड़ करके और हम किसी पेपर पर, यानी लीफ है तो लीफ को रख करके और हम किसी पेपर पर निशान बना लेते हैं। जैसे उसमें जगह जगह पैच होंगे, वेरीगेटेड लीफ होगी, तो ये जगह जगह स्टार्स बना है, डार्क प्लेसेस हैं, तो यहाँ पर हमने उस पेपर में मार्क कर लिया कि यहाँ पर डार्क प्लेसेस थे या डार्क पैचेस थे। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, एक वाटर बाथ बनाते हैं। वाटर बाथ मतलब किसी बीकर में पानी को गर्म करते हैं, उसमें हम पहले तो लीफ को बॉईल कर लेते हैं। फिर उसके बाद उसी गर्म पानी में जो उबलता हुआ पानी होता है उसमें एक छोटे बीकर में इस तरह से, ये नीचे पानी है, इसमें हम एक छोटे बीकर में अल्कोहल रखते हैं। फिर ये अल्कोहल इस तरह से गर्म होने लगता है, बॉईल होने लगता है, और इस लीफ को जो बॉईल पानी में की थी हमने, फिर इसके बाद अल्कोहल में डाल देते हैं, बॉईल करते हैं। तो फिर इससे होता क्या है, अल्कोहल सारे क्लोरोफिल को, लीफ में जो ग्रीन कलर का जो क्लोरोफिल है ये पार्ट, तो इस ग्रीन कलर को डिजॉल्व कर लेता है। ये कलर जो होता है अल्कोहल का, ये ग्रीन हो जाता है और लीफ से सारा क्लोरोफिल निकल जाता है। अब उस लीफ को वाटर से वॉश करने के बाद हम उसको आयोडीन में, यानी डाइल्यूट आयोडीन में डिप करते हैं जब लीफ को इस तरह से, तब हमको पता चलता है कि जो डार्क पैचेस थे वहीं पर क्लोरोफिल प्रेजेंट था और वहाँ पर ही फोटोसिंथेसिस हुआ, जिससे वहाँ पर डार्क हमको कलर दिखाई पड़ा। क्योंकि आयोडीन टेस्ट हम लोग स्टार्च के लिए करते हैं, तो जहाँ पर स्टार्च बना होगा वहीं पर डार्क पर्पल या फिर डार्क ब्लू कलर होगा, दिखाई देगा। तो ये आयोडीन टेस्ट से हमको पता चल जाता है कि जहाँ पर ग्रीन पोर्शन था, मतलब क्लोरोफिल प्रेजेंट था, वहीं पर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हुआ और स्टार्च का एक्यूमुलेशन हो गया। तो ये एक्टिविटी हमको ये प्रूव करती है। इसमें वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि अल्कोहल का कलर किस रंग का हो जाता है, अल्कोहल किस काम में आता है, लीफ से क्या कंटेंट अल्कोहल में डिजोल्व होता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से क्लियर हुई होंगी आपको। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर देखिए बच्चों, ये जो है वो है स्टोमेटा। आप लोग जानते हैं स्टोमेटा, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग बात कर रहे थे कि कोई भी लीफ आप भी देखेंगे तो लीफ की जो अपर मोस्ट लेयर होती है, मतलब ऊपर से अगर हम छू करके लीफ को देखेंगे तो लीफ काफ़ी स्मूथ दिखाई देती है या छूने में महसूस होती है। लेकिन जो बैक पोर्शन या फिर जो निचली सतह होती है लीफ की, वो ये वाली सतह वो काफ़ी खुरदरी या फिर काफ़ी इरेगुलर या रफ दिखाई देती है। क्यों दिखाई देती है? क्योंकि इस पर बहुत सारे पोर प्रेजेंट होते हैं और उन पोर्स को हम लोग स्टोमेटा कहते हैं। तो ये स्टोमेटा है, स्टोमेटा का स्ट्रक्चर है। स्टोमेटा एक्चुअल में क्या है, ये एक पोर है स्टोमेटा, और इस पोर को जो है, इस पोर को हम लोग दो तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, एक ओपन स्टोमेटा और क्लोज स्टोमेटा। स्टूडेंट्स एग्जाम में भी दोनों तरह से डायग्राम बनाने के लिए भी आता है और दोनों तरह से डायग्राम बना हो सकता है, आपको उसको लेबल करने के लिए आता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम फॉर यू। इसमें हमको समझना क्या है, स्टोमेटा का स्ट्रक्चर। स्टोमेटा का स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है आपको बता दें कि स्टोमेटा में तीन चीज़ मेन होती हैं। एक तो होता है यहाँ पर आपका गार्ड सेल, दूसरा जो होता है सब्सिडरी सेल, और तीसरा जो होता है स्टोमेटल पोर, तो स्टोमेटल पोर जो है वो तो आप देख ही रहे हैं, ये स्टोमेटल पोर है ये, और ये जो आपको बीन शेप्ड सेल इस तरह से दिखाई दे रही हैं, एक ये है और एक ये है, तो ये आपको बीन शेप्ड सेल्स दिखाई दे रही हैं, ये क्या हैं, गार्ड सेल्स हैं। इन गार्ड सेल्स में जो छोटे छोटे आपको ग्रीन कलर के पैचेज या फिर वैक्यूल दिखाई दे रही हैं, ये क्या हैं, क्लोरोप्लास्ट हैं, यानी कि क्लोरोप्लास्ट हैं। और ये दो गार्ड सेल इस तरह से, यानी कि एक स्टोमेटा में गार्ड सेल इस तरह से दो गार्ड सेल्स होती हैं, और ये दोनों गार्ड सेल्स ही इस स्टोमेटल पोर को ओपन और क्लोज करने का काम करती हैं। इसके चारों तरफ, गार्ड सेल के चारों तरफ ये जो सेल्स होती हैं इस तरह की जो लगी हुई, एपिडर्मल सेल्स भी कहते हैं इनको, लेकिन इससे पहले कुछ सेल्स और होती हैं, इनको सब्सिडरी सेल्स कहते हैं। ये सब्सिडरी सेल्स, तो तीन चीज़ मेन हो गई, इस गार्ड सेल, सब्सिडरी सेल, स्टोमेटल पोर। ये आपको फिगर बनाते समय बहुत ध्यान देना है कि जब आपसे पूछा जाए ओपन स्टोमेटा तो पोर को ओपन दिखाना है इसकी तरह,
और पोर को क्लोज करके ऐसे दिखाना है। आप जानते हैं कि जब ये वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, अंदर से ये वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं गार्ड सेल, तो ये टच हो जाती हैं, तो बाहर वाली सतह जो होती है इस तरह से ज़्यादा वॉल्ड हो जाती है, कर्व्ड हो जाती है, और अंदर वाली सतह जो होती है अंदर की तरफ कर्व्ड हो जाती है। क्यों? क्योंकि अंदर वाली सतह जो होती है वो थिक होती है और बाहर वाली सतह जो होती है वो थिन होती है। तो इसीलिए अंदर से वाटर जब एब्जॉर्ब होता है तब इस पर प्रेशर पड़ने की वजह से ये बाहर की तरफ बल्ज हो जाती है, अंदर की सतह जो होती है वो स्ट्रेच नहीं हो पाती है, इसीलिए अंदर की तरफ कर्व्ड हो जाती है। तब ये स्टोमेटल पोर ओपन हो जाता है। जब ये वाटर रिलीज हो जाता है और ये सेल जो होती हैं फ्लैसिड हो जाती हैं इस तरह से, और फ्लैसिड होने के बाद ये सतह जो थिक वाली होती है वो स्ट्रेट हो जाती है, तो स्ट्रेट होने की वजह से ये पोर बंद हो जाता है। तो स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग इस तरह से होती है। स्टोमेटा का काम क्या होता है? स्टोमेटा का काम होता है कि जितना भी आप जानते हैं कि अभी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में रिक्वायर्ड होता है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट कहाँ से रिसीव करता है? यहीं से रिसीव करता है। तो प्लांट जो है ओपन स्टोमेटा के थ्रू CO2 को बाहर से एटमॉस्फेयर से लीव्स के थ्रू अंदर रिसीव करता है। तो ये कंपोनेंट यानी CO2 जो है स्टोमेटा के थ्रू रिसीव हो जाता है। वाटर को कहाँ से रिसीव करता है प्लांट? वाटर को प्लांट अपनी रूट से रिसीव करता है, यानी कि रूट आप लोग जानते हैं जो सॉइल के अंदर होती है, इन रूट से वाटर रिसीव करता है, और ये वाटर जो होता है जाइलम के थ्रू ऊपर पहुंच करके लीफ तक पहुंच जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी आ गया और वाटर भी आ गया, और क्लोरोफिल लीफ में है ही, बस सनलाइट की देर होती है और फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हो जाती है। तो ये मेन काम होता है स्टोमेटा का। इसके साथ साथ CO2 को एब्जॉर्ब करने के साथ साथ स्टोमेटा जो है वो O2 को, जब फोटोसिंथेसिस में जो O2 रिलीज होती है उसको बाहर निकालने का भी काम करता है। साथ ही साथ स्टोमेटा जो है वो वाटर का इवेपोरेशन करता है, यानी कि वाटर जो नीचे से एब्जॉर्ब होता है एक्सेस वाटर वो इवेपोरेट हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है। तो ये इवेपोरेशन यानी कि ट्रांसपायरेशन, इस वाटर का इवेपोरेशन जब वाटर वेपर्स के फॉर्म में होता है स्टोमेटा के थ्रू, तो इसको हम लोग ट्रांसपायरेशन कहते हैं। तो ये ट्रांसपायरेशन में भी हेल्प करता है, तो ट्रांसपायरेशन में भी हेल्प करता है स्टोमेटा। अब बात आती है नेक्स्ट, देखिए अब बात ये आती है कि आप लोग समझ चुके हैं कि वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट और जो क्लोरोफिल की प्रेजेंस ज़रूरी होती है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो एक एक्टिविटी के थ्रू हम लोग ये जान चुके हैं कि जो क्लोरोफिल की प्रेजेंस ज़रूरी होती है फोटोसिंथेसिस के लिए। दूसरी एक्टिविटी ये है 6.2, आप NCERT में दी हुई है, पढ़ेंगे समझ जाएंगे। इस एक्टिविटी के थ्रू हम लोग क्या समझेंगे? इस एक्टिविटी के थ्रू हम लोग समझेंगे कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड वो प्लांट में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए ज़रूरी होती है। तो कैसे? हम लोग क्या करेंगे, 2 पॉटेड प्लांट लेंगे लगभग एक हाइट के, और उनको दोनों को डार्क रूम में पहले रखते हैं, दोनों वेरीगेटेड लीव्स हो जाती हैं। फिर उसके बाद उनको हम कुछ घंटों के लिए 2 अलग अलग ग्लास जार में हम लोग इस तरह से कवर कर देते हैं। एक पॉटेड प्लांट जो हमने जिसको A माना है, इस पॉटेड प्लांट में एक पेट्री डिश में या फिर एक बीकर में हम लोग इस तरह से जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रख देते हैं। ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आप देख रहे हैं या इसमें है वॉच ग्लास में या पेट्री डिश में, किसी भी जो है छोटे से बर्तन में हम लोग यहाँ पर रख देंगे इसको, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का काम क्या होता है कि ये आसपास की जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड होती है उस कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो पोटेशियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन कर देता है सॉलिड फॉर्म में। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड आसपास की सारी एब्जॉर्ब हो जाती है यहाँ पर। एक पॉटेड प्लांट को ऐसे ही हम रख देते हैं बिना पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के। तो अब जब हम कुछ घंटों तक इन दोनों सेटअप को जब रखा रहने देते हैं तो हम ये देखते हैं कि ये जो प्लांट है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ख़त्म हो जाती है, तो फोटोसिंथेसिस नहीं होती है, यानी कि फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, क्योंकि सारी कार्बन डाइऑक्साइड जो जार के अंदर थी वो एब्जॉर्ब हो गई। किसने एब्जॉर्ब किया? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ने। यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड थी वो अभी भी है, और सारी की सारी कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइज हो गई किसमें? फोटोसिंथेसिस में। तो यहाँ पर फॉर्मेशन फूड का ज़्यादा हुआ, या फॉर्मेशन यहाँ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हुई, यहाँ पर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं हुई। तो इस एक्टिविटी के थ्रू हम लोग ये समझ सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस।
अब नेक्स्ट पर चलते हैं। देखिए, हाँ, जो बचा हुआ जो पोर्शन था कीमोसिंथेसिस और कीमोऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, तो उसको थोड़ा सा और डिटेल से समझ लेते हैं। कीमोसिंथेसिस क्या होती है? द प्रोसेस दैट सम ऑर्गेनिज्म, मोस्टली आर्कीबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया का मतलब ये होता है कि ऐसे बैक्टीरिया जो बहुत पहले शुरुआती समय में मिले थे, जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था, तो उस समय मिले बैक्टीरिया को आर्कीबैक्टीरिया कहते हैं, जो हार्शफुल कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर, बहुत ज़्यादा एसिड में, बहुत ज़्यादा सॉल्ट में सर्वाइव कर सकते हैं, तो ऐसे बैक्टीरिया को हम लोग आर्कीबैक्टीरिया कहते हैं। तो ऐसे बैक्टीरिया यूज टू कन्वर्ट केमिकल एनर्जी फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड आप लोग जान ही रहे हैं कि जो मतलब कार्बन लेस होगा, यानी कार्बन जिसमें नहीं होगा, ऐसे कंपाउंड जैसे आयरन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, सल्फर हो गया, तो ऐसे कंपाउंड से अपनी एनर्जी का फॉर्मेशन करते हैं विदाउट कार्बन इनटू ग्लूकोज एंड अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये ग्लूकोज का फॉर्मेशन दूसरे यानी कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड से करते हैं। तो इसीलिए इस प्रोसेस को, क्योंकि वो केमिकल है, केमिकल से अपना फूड बना रहे हैं, तो इसीलिए इस प्रोसेस को कहते हैं कीमोसिंथेसिस। और इन लिविंग बींग्स को अगर आपको याद हो तो मैंने क्या बताया था कि ऐसे लिविंग बींग जो कीमो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन करते हैं या कीमोसिंथेसिस करते हैं, तो उनको क्या कहते हैं? कीमो ऑटोट्रॉफ। कीमो ऑटोट्रॉफ कहते हैं इनको, तो कीमो ऑटोट्रॉफ कहेंगे। तो ये कीमो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन होता है। अब कीमो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में ज़रूरी नहीं है कि लिविंग बींग जो कीमो ऑटोट्रॉफ होगा, मतलब बैक्टीरिया होगा, उसके अंदर क्लोरोफिल होना ज़रूरी है, ऐसा नहीं है। क्लोरोफिल होना ज़रूरी नहीं है कीमोसिंथेसिस में, क्योंकि सनलाइट की प्रेजेंस में नहीं कर रहा। क्लोरोफिल क्या करता है? सनलाइट की एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है केमिकल एनर्जी में। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर क्लोरोफिल की ज़रूरत नहीं होती है। अब आते हैं नेक्स्ट। देखिए, ये एक आपको मैंने पिक्चर दिखाने की कोशिश की है। ये है कीमो सिंथेटिक बैक्टीरिया, कुछ इस तरह से एक पिक्चर ली गई है। तो ये सल्फ़र बैक्टीरिया की एक पिक्चर ली गई है, तो ये इस तरह के दिखाई देते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये न्यूट्रिशन के बारे में आज इतना ही। इसका एक नेक्स्ट पार्ट मैंने और बनाया है, उस नेक्स्ट पार्ट को भी आप ज़रूर देखें पूरा अंडरस्टैंड करने के लिए, क्योंकि मैंने उस पूरे पार्ट में हेटरोटॉपिक न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन इन मीन्स न्यूट्रिशन इन अमीबा, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन, जिसे हम होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं, उस न्यूट्रिशन को उसमें पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया है मैंने। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।